Dear students, up till now we have been studying about polymerization reactions. We saw that the polymerization reaction, there are different types, and mainly we saw polycondensation reactions in which you saw that the condensation reactions are main component of polymerization reactions. After that, you saw that the reactions can take place by two mechanisms. They can take place via step growth polymerization or chain growth polymerization. In chain growth polymerization reactions, you saw that how in step growth polymerization, you saw how multiple chains develop at the same time. Monomers, they react with each other, forming smaller chains, which ultimately join together to form a larger chain. But another type of polymerization, and that is chain polymerization reaction. Today we are going to go in great detail how chain polymerization reactions work. So chain polymerization reactions are those reactions I have already discussed with you, that in these type of reactions, a repeating unit, that is monomers, are added to the same chain at a time. That means if these all are monomers, so these monomers, they keep on adding to the same chain. No new chains start at once. That means multiple small chains are not formed, but a single chain keeps on growing till it terminates. So these are chain polymerization reaction. Another important aspect of chain polymerization reaction is that one functional group is enough to cause polymerization. I have told you this in step polymerization that we need to have two functional groups. That means in step polymerization reactions, what needs to happen, that there should be two groups, then only the polymerization can take place. Otherwise, both functional groups, they will react with each other, and what will happen, that the reaction will stop. But in case of chain polymerization reaction, we don't need to have essentially two functional groups. One functional group is more than enough. और ऐसा क्यों है, ये आप एग्जांपल्स में खुद ही देखेंगे कि हमारे पास अगर एक फंक्शनल ग्रुप भी है तो वो हमारे लिए क्या है, काफी है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कॉज करने के लिए. और अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. उससे सिर्फ ये होता है हमारे पास कि क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिसकी एग्जांपल आपने बेकेलाइट में देखी है कि क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है. Another aspect of chain polymerization reaction is that the monomer is present throughout in the reaction. और इसमें मैंने आपको एक अच्छा सा ग्राफ दिखाया था कि सपोज ये हमारी रिएक्शन चल रही है कन्वर्जन, और यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर वेट है. तो इसमें क्या होता है कि एकदम मॉलिक्यूलर वेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कन्वर्जन स्लो है, और उसके बाद ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट. तो मोनोमर जो है वो इन टुवर्ड्स द एंड भी रिएक्शन में हमारे पास रहता है. देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन द कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर. जबकि स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हमने देखा कि मोनोमर जो है वो इमीडिएटली जो है वो उसकी कंसंट्रेशन फॉल हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू रीजंस दैट हमारे पास मल्टीपल मोनोमर जो है वो मल्टीपल चेन शुरू कर देते हैं. तो चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स मेनली हैं. सबसे पहला है इनिशिएशन. ये वो स्टेप है जिसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टार्ट होती है. दूसरा स्टेप है हमारे पास प्रोपगेशन. प्रोपगेशन वो रिएक्शन का स्टेप है जिसमें हमारी चेन जो है वो प्रोपगेट करती रहती है, क्योंकि ये चेन पॉलीमराइजेशन है, इसमें एक सिंगल चेन जो है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग. So propagation step is very important. In this step, the length of the chain is decided at how big the chain is going to be. After a certain point of time, हमारे पास propagation stop हो जाती है और तीसरा step आ जाता है, which is the termination of the reaction. Chain termination, जिससे हमारी chain terminate हो जाती है और दूसरी chain जो है उसकी formation होती है. तो हमारे पास 3 steps हैं, initiation, propagation and termination. अब हमारे पास क्या है, depending upon the nature of this initiator, there is a species initiator which initiates the polymerization reaction. There is always a species which starts a reaction, particularly in case of chain polymerization reactions. तो जो हमारे पास इनिशिएटर है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, कि इसकी नेचर क्या है, हमारे पास 3 किस्म की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती हैं. चेन पॉलीमराइजेशन, आई मीन टू से, सबसे पहली है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, दूसरी हमारे पास है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और तीसरी हमारे पास है एनायनिक पॉलीमराइजेशन. दैट मीन्स 3 किस्म की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम क्या करते हैं, एनकाउंटर करते हैं. फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन. ये तीनों किस्म की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है यू हैव टू स्टडी.
सबसे पहले हमारे पास है फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है, इट इज इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल्स, जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है। तो फ्री रेडिकल्स, आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नो व्हाट अ फ्री रेडिकल इज। अ फ्री रेडिकल इज अ स्पीशीज में क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज। हमने देखे हैं ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, दो स्पीशीज जिनमें क्या होता है हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हमारे इंटरमीडिएट में। अब जो फ्री रेडिकल स्पीशीज हैं, जनरली हमारे पास कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्पीशीज हैं जिनको हम यूज करते हैं इन रिएक्शन, जिसमें से एक हमारे पास जो है वो है AIBN, जिसका नाम है 2,2-azo bis isobutyryl नाइट्राइल, जिसको हम AIBN बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है AIBN का। तो इसमें एक एजो लिंकेज होती है यहाँ बीच में। अब क्या होता है, जब इसमें लाइट पड़ती है या हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जो है थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, इट टेंड्स टू एस्केप। तो ये क्या करता है, ये बीच से एस्केप होता है, हमारे पास क्या होते हैं, दो ऐसे रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। तो इस ये हमें किससे मिलता है, AIBN से। दूसरा हमारे पास बहुत अच्छा जो एक इनिशिएटर है वो है बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड को। इसको भी इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है और लाइट के प्रेजेंस में ये क्लीव होके हमारे पास 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। तो ये आ गई बात हमारे पास इनिशिएटर्स की। तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसमें हमारे पास यही फ्री रेडिकल्स हैं, और भी हम यूज करते हैं, बट ये जस्ट मैंने एग्जांपल्स आपको दी है। और जो हमारे पास इसमें मोनोमर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें हमारे पास डबल बॉन्डेड मोनोमर्स होते हैं, बट आप एग्जांपल्स देखेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, यू विल कम अक्रॉस मल्टीपल एग्जांपल्स। सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा वो क्या है, रेडिकल जनरेशन। ठीक है, रेडिकल जनरेशन है कि मतलब सबसे पहले तो आपको फ्री रेडिकल जनरेट करना है, इससे पहले कि वो इनिशिएशन का काम काज करे। दिस स्टेप इज रेडिकल जनरेशन, यही स्टेप है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल जनरेशन। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल स्टेबल है, इट्स न्यूट्रल, ये फ्री रेडिकल नहीं है, लेकिन जब हम इसको किसी लाइट या हीट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेशन होती है। दिस स्टेप इज फ्री रेडिकल जनरेशन। जो यहाँ पर मैंने देखा है कि जो हमारा इनिशिएटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, इट गिव्स अस 2 यूनिट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। So this reaction is a dissociation reaction, and the rate constant for this reaction is Kd, rate constant for dissociation reaction. अब यहाँ से हमारी रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। ये रिएक्शन क्या है, चेन इनिशिएशन रिएक्शन। चेन इनिशिएशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा इनिशिएटर है, ये जो R है ना, दिस इज आर इनिशिएटर। इट कैन बी योर बेंजोइल पेरोक्साइड, इट कैन बी योर AIBN, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देयर आर many it can be some halogen halide रेडिकल, मतलब कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो क्या करेगी, फ्री रेडिकल फॉर्म होने की जिसकी टेंडेंसी है। जब ये किसी मोनोमर के साथ रिएक्ट करती है, Ki, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर इनिशिएशन रिएक्शन, एंड वी गेट दिस स्पीशीज। दिस स्पीशीज इज द प्रोडक्ट ऑफ चेन इनिशिएशन रिएक्शन। तो वैसे मैं अलग से करती हूँ, लेकिन मैंने यहीं पर जो है आपको इसकी एग्जाम्पल दे दी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉलीथीन फॉर्मेशन। दिस रिएक्शन जो मैं आपके साथ ये दिखा रही हूँ ना आपको, ये है पॉलीइथीन फॉर्मेशन रिएक्शन। पॉलीइथीन फॉर्मेशन क्या है, जो आप पॉलीथीन बोलते हैं ना जनरली, जो लिफाफे होते हैं वो इसी रिएक्शन से जनरेट होते हैं, बिकॉज दे हैव मोनोमर इथीन मॉलिक्यूल्स, पॉलीइथीन, they are prepared by the polymerization of ethene molecules। तो अब इसमें हमारे पास एक इनिशिएटर है, जो इस केस में मैंने क्या दिखाया है, ये एक अल्कोइल फ्री रेडिकल है, विच कैन बी बेंजोइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, जो हमारा फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, जैसे ही एक से डबल बॉन्ड के कांटेक्ट में आता है, इमीडिएटली ये क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लीव हो जाती है इन सच अ वे दैट इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इट गोज टू फॉर्म बॉन्ड विद दिस पर्टिकुलर रेडिकल, एंड यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। चेन इनिशिएशन, दिस वाज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इट वाज कंप्लीटली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इसको इसने इसके साथ क्या किया है, इसको रेडिकलाइज कर दिया है, ये इसकी रेडिकल फॉर्मेशन हो गई। ठीक है,
इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन। तो इस केस में देखिए ये हमारा जैसे ये है ना, ये पार्ट हमारा कहाँ से आया, इनिशिएटर से, और ये पार्ट हमारा कहाँ से आया, हमारे मोनोमर से। दिस रिएक्शन इज नोन एज चेन इनिशिएशन रिएक्शन। अब दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा स्टेप आ गया, चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। चेन प्रोपगेशन में हमारे पास क्या होता है, अभी जो इनिशिएटर है इसके पास सपोज M1 था, सपोज अगर मैं M1 की जगह N लिख दूंगी, ठीक है, N नंबर ऑफ इसके पास मोनोमर्स थे। अब एक और M इसके पास आ गया, और अब क्या हो जाएगा, MN+1, या फिर आप वैसे ही लिख सकते हो जैसे मैंने पहले लिखाया, RM1 है, एक और M आ गया तो क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। Kp इसमें रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर प्रोपगेशन रिएक्शन। और इसी तरीके से होता है, यहाँ क्या है, N+1 है, अगर एक और आ जाएगा तो N+2 हो जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, दिस चेन कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग until it reaches its desired length। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो हमारा अल्कोहल फ्री रेडिकल है, इसके साथ जो मोनोमर लगा है, अभी एक और मोनोमर के साथ आता है, तो देखिए चेन लेंथ इंक्रीज हो गई। पहले इस चेन में 2 ही कार्बन एटम्स थे, अब कितने कार्बन एटम्स आ गए, अब 4 कार्बन एटम्स आ गए। अब सपोज अगर इसके पास एक और एल्कीन मोनोमर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी फर्दर प्रोपगेशन हो जाएगी, और अब हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 पे क्या होगा, एक फ्री रेडिकल। और अगर एक और हमारे पास इसके पास CH2 और CH2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने आ गए, 8 हमारे पास आ गए, एंड सो ऑन। यू गेट द आइडिया दैट मोनोमर्स दे कीप ऑन गेटिंग एडेड टू द सेम चेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। अब हमारे पास क्या हो जाता है, उसके बाद चेन प्रोपगेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन। 3 ही स्टेप दिखा है ना, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। जो चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसके डिफरेंट तरीके हैं चेन कैसे टर्मिनेट होगी। एक तरीका है कपलिंग। इसमें क्या होता है, 2 चेन जो पैरेलल ग्रो करती आ रही हैं वो क्या करेंगे, आपस में कपल हो जाएंगे। सपोज इसके पास M नंबर के मोनोमर्स थे, इसके पास N नंबर के मोनोमर्स लगे हुए हैं इस चेन में, तो इस केस में रेट कांस्टेंट क्या है, टर्मिनेशन वाया कपलिंग। तो RMN दोनों जो मोनोमर है वो ऐड हो जाएंगे। सपोज इसके पास 100 मोनोमर है, इसके पास 200 मोनोमर है, हमारे पास 300 मोनोमर्स आ जाएंगे बीच में, और दो तरफ साइड पे क्या होंगे, इनिशिएटर्स लगे होंगे, ठीक है। ये हमारी टर्मिनेशन किससे हो गई, कपलिंग से। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन मेथड ऑफ टर्मिनेशन कि 2 चेन लास्ट में क्या हो जाती हैं, आपस में फ्यूज हो जाती हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन की आप बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे कि हमारे पास, लेकिन वो इसमें आयोनिक पॉलीमराइजेशन में भी होती है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है कि 2 मोनोमर्स जो है ना, ये जब आपस में एक दूसरे से मिलेंगे ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है। इसका मतलब ये इसका आधा पार्ट ले लेगा या ये इसका आधा पार्ट ले लेगा, और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होके क्या करते हैं, एक न्यूट्रल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है। लेकिन चेन एक ही नहीं बनती, चेन 2 बन जाती है। ये एक पार्ट ले लेगा इसका, या ये इसका एक पार्ट ले लेगा। हम एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन से हमारे पास चेन टर्मिनेशन कैसे होती है। आई विल डिस्कस दिस विद यू। तीसरा हमारे पास है चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर में हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी हमारी चेन टर्मिनेशन ऐसे होती है कि हमारा जो मोनोमर की ये है, ये किसी एक न्यूट्रल, किसी एक फ्री रेडिकल यूनिट के साथ क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ मर्ज होके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा, और जो इसका फ्री रेडिकल पार्ट होता है, यानी जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, वो ये किसी और को एक्टिवेट कर देता है। ये अपना जो है ना रेडिकल वो ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे में। ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चेन ट्रांसफर, देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। तो हम पहले देखेंगे जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीइथीन, उसमें हमारी टर्मिनेशन कैसे होती है। पॉलीइथीन में हमारे पास टर्मिनेशन जो होती है, इट टेक्स प्लेस वाया कपलिंग। कैसे होती है, कपलिंग मैकेनिज्म से इसमें टर्मिनेशन होती है। आप देखिए इसमें जो मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दी हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इसके पास 3 कार्बन एटम्स है, इसके पास भी 3 कार्बन एटम्स है, और हमारे पास क्या है कि जो मोनो इन दोनों के पास फ्री रेडिकल्स है।
अल्टीमेटली ये दोनों चेन्स क्या करती है, आपस में मर्ज हो जाती है और यहाँ पर एक नई बॉन्ड बनाती है, और ये जो चेन लेंथ है हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ नोन एज कपलिंग, टर्मिनेशन बाय कपलिंग। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स में हमारे पास ज्यादातर जो है चेन टर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय कपलिंग मैकेनिज्म। अब हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स हैं, आयोनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें कटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन है। उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिस्प्रोपोर्शनेशन और चेन ट्रांसफर जो है वो कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल आप इस पर जो है इतना ही रखेंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हमारे पास चेन पॉलीमराइजेशन क्या होती है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, उसके बाद हमने सबसे पहला डिस्कस किया रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने देखा कि इसमें फ्री रेडिकल हमारे पास इनिशिएटर होता है और कैसे हमारे पास रिएक्शन प्रोपेगेट करती है एंड देन इट गोज टू टर्मिनेशन। इसमें आप मल्टीपल एग्जांपल्स जो है साइट कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस आर दिस क्लास कम्स टू एन एंड।